on professional practice in civil engineering. We are learning module 2, that is building drawing using AutoCAD. So in this series today, now we will proceed with some of the commands. So I hope that my audio is clear to all of you. So please type C in the chat box so that I will get your response. You are listening to me, you are here, and we will proceed further today's session. So another important thing is that just yesterday I have given you some of the insights regarding the course on professional practice in civil engineering. So whatever is the target, that is, we have to prepare our 16 drawings portfolio which are required for a complete building project. So that is our target. So initially now we will understand what are the basic concepts of the AutoCAD software, and then for AutoCAD software, what are the settings required so that we can directly jump to start our building drawing. There are so many settings are required to draw a good building drawing, working drawing, section, elevation, and structural drawing, and all other things. So if you are conversant with all of these such good practices and tricks and tips, then you can very easily start and complete the drawing very fast, and that is our target. So for that purpose, we have decided that we will understand every basic of concept used in the AutoCAD, so that in the later stages when we are preparing the building drawing, at that time you should be conversant with the AutoCAD commands so that you can proceed fast and you can complete the AutoCAD drawing in less time. So that is our target. As when you are working as a practicing civil engineer, so what is our target is to complete the more drawing giving required for that project in less time. So you should be a practitioner in AutoCAD building drawing for that purpose. So it is our target that every day, whatever the commands we are learning, you must practice that at your home. So for this, already we have given some of the notes. So other notes now you will be getting it after 2-3 days through the Google Classroom or our WhatsApp group, where you will getting all that notes and you will work with that. And in same day, you will also getting the links to submit your assignment, home assignments. So that will be some part is remaining. So that we will complete first, and then later on, then we will proceed for the building drawing. So for this purpose, now today, again, we will see some of the small things, though they may be the basic things are there, but you have to be conversant with this. So again, some important tips you have to remember. So first tip number 1, that you have to understand that always save AutoCAD file on D drive or any other drive other than C. So that also you have to remember. When you give the save command in the AutoCAD, then you have to remember that that drawing should not be saved in My Document, or it should not be saved on the desktop. It should be saved on a particular folder. And how to do that? So that we will understand today. Because after 2-3 days, when we are giving you the home assignment, so that drawing you have to prepare at your home, you have to save that AutoCAD file, and then you have to submit it for checking to me, so that I will confirm that you have learned all these things on your own. So for that, what will be the procedure? And there are some tips now you have to again require. So first tip already I have given, that don't save your drawing on C drive or on the desktop or on the My Document. यहाँ पे कहीं भी आपको ये फाइल आपकी सेव नहीं करनी है. So that is tip number 1. Tip number 2 is a good AutoCAD drafter always give save command after every 2-3-5 minutes. So that also you have to remember. आप AutoCAD के अंदर ड्राइंग का काम कर रहे हैं, हो सकता है आपको बिल्डिंग ड्राइंग बनाने के लिए कंटिन्यूअस 2-3 घंटे बैठना पड़ेगा, लेकिन 2-3 घंटे के बीच में हर 5 मिनट के बाद में आपने सेव कमांड को देना है. सो दैट इज द अनदर सेकंड इंपॉर्टेंट टिप,
that after every 5 minutes, you have to press save command in the AutoCAD, so that whatever the progress you are doing in your drawing, it should be saved at the same time. You should not wait it for the computer to save that. Suppose, by the way, in case it may happen that you are working on your desktop and there is no battery backup for the desktop system, computer system in our laboratory or at our home. So when we are drawing AutoCAD and at the same instance, the electricity goes off. So your computer get automatically shut down, and whatever the drawing you have given, because you have not saved it, it will get lost. So as we are an engineer, so we should resolve this problem, and to resolve that problem, you have to always remember that you have to give the save command at every 5 minutes while using the AutoCAD. AutoCAD में आपको हर 5 मिनट के बाद में सेव कमांड देनी है. वो कैसे करना है वो आपको मैं बताने वाला हूं. सो फर्स्ट टिप वन इज, आपको कोई भी AutoCAD की फाइल सी ड्राइव पे या माई डॉक्यूमेंट में या डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है. दैट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप. यू हैव टू रिमेंबर. अनदर इंपॉर्टेंट सेकंड टिप इज यू हैव टू गिव सेव कमांड आफ्टर एवरी 5 मिनट. एंड देन थर्ड टिप इज you should give a proper name to your file. फाइल को आपको proper name देना है. So how all these things will happen? So that we will understand first in the today's session, and then we will see some of the few commands. So I want to just know that are you interested to know all these things? So it may happen that some of with you, if you are practicing in AutoCAD, तो आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर करते समय कभी कभी आपसे एक्सीडेंटली आपकी फाइल करप्ट हो गई, या आपकी फाइल सेव नहीं हो गई, या आपकी फाइल ओपन नहीं होती है, या आपने वो फाइल कहां पर सेव की है वो आपको पता ही नहीं है. ऐसा एक्सीडेंट आपके किसी के साथ में इसके पहले, नॉट ओनली फॉर AutoCAD, अदर फॉर अदर फाइल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अभी कभी आपके साथ में ऐसा एक्सीडेंट हुआ है क्या? सो आई वांट टू नो दैट, यस और नो इन द चैट बॉक्स. सो जिनके साथ में ऐसा इंसिडेंट हुआ है वो यस वाई टाइप कर सकते, जिनके साथ में नहीं हुआ है वो नो कर सकते. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? आई वांट टू नो इन दिस टुडेज ऑनलाइन क्लास दैट दे हैव गॉट सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स. सो एवरीबॉडी हैज टू गिव द आंसर. सो आपका आंसर यस या नो दोनों में से कोई भी हो सकता है. सो यू हैव टू टाइप योर आंसर वाई और एन इन द चैट बॉक्स. सो दिस इज respond required from all of you. So only 4 students given the respond at present. So all other students also need to give the respond that क्या आपके साथ में ऐसा कभी इंसिडेंस हुआ है जब आपकी वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट या AutoCAD की फाइल करप्ट हो गई है, या ओपन नहीं हो रही है, या उसका नाम कहाँ रखा गया है ये आपको पता नहीं, तो आपको ढूंढते नहीं आ रहा है. So for this purpose, you have to remember that what is the solution. So in the chat box, I have received one of the message that my audio is not clear, but you have to check your internet connectivity. I hope that my audio is clear to all of you. So there is no any audio problem from my side. So you have to check your internet connectivity. Otherwise, you will not getting that voice clearly on your mobile. So you can just see that जो लोगों ने नो अभी टाइप किया नहीं किसी ने भी, सब लोगों ने यस टाइप किया, 1-2 लोगों ने ही नो टाइप किया. इसका मतलब यह है कि जो लोगों ने नो टाइप किया उन्होंने इसके पहले कंप्यूटर पे कोई प्रोफेशनल काम करने की कोशिश ही नहीं करी. यानी आपने कोई किसी काम के लिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या पीपीटी या AutoCAD का ऐसा कोई फाइल बनाया नहीं जिसका आपको जवाबदारी से काम होगा, और इसलिए वो फाइल आपको ढूंढना ही नहीं पड़ा, या आपकी वो फाइल गमी नहीं. सो नाउ बट ऑनवर्ड, दिस वे ऑनवर्ड, ये आपके साथ में हो सकता है. Someday you are working on the computer and suddenly light goes off, electricity goes off, and your battery of computer or laptop was down, so computer was shut down and your file was get lost. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए. So for that purpose also we have to take care of. So there are 2-3 important things you have to note down regarding this. So today's topic is
सेविंग द फाइल इन ऑटोकैड सिस्टमैटिक वे कैसे हम लोग करेंगे, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड. सो नाउ आई विल शेयर here my file, and then we will proceed with this. So I will share my desktop first. So I hope that my screen is visible to all of you, and then we will proceed for this purpose. So here you can just see that अभी मेरे स्क्रीन पे आपको डेस्कटॉप दिख रहा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? नाउ यू हैव टू नोट डाउन दिस फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप आपके माय कंप्यूटर या जो पीसी है आपका यहाँ पर, सो यू कैन गो हियर टू द माय कंप्यूटर. सो आई विल ओपन दिस माय कंप्यूटर. नाउ इन द माय कंप्यूटर आई विल open my D drive or E drive. That also you have to remember always. So here on the D drive, I will open my D drive. Now on the D drive, what I have done, this way you have to create your folder in your AutoCAD D drive. आपके D drive पे ये फोल्डर बनाना है आपको. उसका नाम क्या रहेगा? So that AutoCAD बिल्डिंग ड्राइंग, इस नाम का एक फोल्डर आपको आपके D drive पे बनाना है. So this is the first step you want to remember. So पहली स्टेप आपको रहेगी कि आपके डी ड्राइव पे आप इस प्रकार से ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग इस प्रकार की फोल्डर आप बनाएंगे. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ वंस दिस फोल्डर वाज डन, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? सो दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. तो ये पहला तो ये हो गया कि आपने एक फोल्डर डी ड्राइव पे बना लिया है. दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर. सो स्टेप 1 वाज कंप्लीटेड. नाउ when we work in the AutoCAD, so suppose now I have started this AutoCAD and I will draw some of the drawing here. So you have to another remember that the default file name in the AutoCAD is drawing1. ये drawing1 जो नाम है ये AutoCAD अपने आप से डिफॉल्ट दे देता है जब हम लोग नई फाइल AutoCAD में शुरू करते हैं. So whenever we start a new file in the AutoCAD, the default file name is drawing1 and .dwg. This is the drawing file extension. This is called as extension. So ये .dwg है, ये हमारा फाइल नेम है, एक्सटेंशन है उसका फाइल नेम का. So drawing1 is the default name of the file. Now suppose I will draw here some of the drawing. For example, now I will use this rectangle command and I will draw one rectangle here. Then I will use circle command. Then I will draw some circle here. I am just drawing it for sample purpose. Then I will go to polygon command, and then by using the edge method, number of side I will take 5, and then by edge method I will type E in the command line, and then I will draw one of the hexagon. Then I will go to the ellipse command, and then I will click one point, another point, and another point. So in this way, this 3-4 items I have drawn. Suppose this is my drawing. Now what is the important thing that ये ड्राइंग आपने बनाया तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, व्हाट यू विल डू, यू हैव टू सेव दिस फाइल. अब ये सेव करने का तरीका आपको कहां से मिलेगा? सो यू कैन गो टू दिस टॉप लेफ्ट कॉर्नर. यहां पर हम लोग जाएंगे और टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहां से ओपन करने के बाद में कैंसल, सॉरी आई हैव जस्ट नॉट शोन यू द मेनू. वी विल जस्ट सी अगेन हियर. यहां पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपका जो फाइल मेनू ओपन हो चुका है, उस फाइल मेनू में 3rd नंबर की कमांड है हमारी सेव. सो यहाँ पे आपको नाम देना है. सो वेन एवर आई विल क्लिक ऑन द सेव, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज आस्किंग दैट फाइल नेम. सो फाइल नेम इज डिफॉल्ट फाइल नेम इज drawing1. सो फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट यू आर नॉट नोइंग एनीथिंग, अभी आपको कुछ पता नहीं है, तो आपको यहाँ पे फाइल नेम drawing1 दे दिया और आपने उसको सेव बोल दिया, तो यहाँ पे आपको ऐसे मैसेज आ सकता है. सो यू कैन जस्ट सी दैट. सो दिस इज द मैसेज दैट drawing1.dwg ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड डू यू वांट टू रिप्लेस इट. तो आपको अभी क्या इसको रिप्लेस करना है क्या? तो आप मुझे आंसर देंगे चैट बॉक्स में. सो व्हाट आई शुड डू हियर, मुझे अभी यस बोलना चाहिए कि नो बोलना चाहिए? आई वांट टू आंसर इन द चैट बॉक्स. सो यू हैव टू टेल मी दैट in this situation what I should do. So write your response in the chat box. So everybody has to type
इन द चैट बॉक्स कि ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आ गया है, ये ड्राइंग वन डॉट डब्ल्यूजी ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा मेरा, आइदर आई शुड क्लिक यस और आई शुड क्लिक नो। So everybody has to give the number. So this is a very important fundamental thing that you have to remember कि हमको यहाँ पे यस या नो बोलना चाहिए, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब इसका सही जवाब क्या है? सो आई हैव सीन दैट देर आर मेनी स्टूडेंट्स दैट आर नॉट गिविंग द आंसर इन द चैट बॉक्स। वो सिर्फ यहाँ पर अटेंड है वहां पर, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। सो ऑल थिंग्स आर गेटिंग इन द हिस्ट्री ऑफ माई जूम मीटिंग, सो यू हैव टू ऑल्सो गिव द रिस्पॉन्स। तो सही तरीका क्या है इसके अंदर? तो अभी यहाँ पर मुझे वैसे बोलना चाहिए नो, क्योंकि हो सकता है ड्राइंग वन में मैंने कुछ तो बना के रखा होगा, तो मुझे यहाँ पर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा नो, क्योंकि मुझे ड्राइंग वन ऑलरेडी मेरे पास में बना है, तो मैं डबल से वही नाम से फाइल कभी भी सेव नहीं कर सकता हूं। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट, कभी भी कोई भी फाइल हमको रिप्लेस नहीं करनी है। दैट इज टिप नंबर 3 इन द ऑटोकैड। सो यू शुड नॉट नेवर रिप्लेस एनी फाइल वाइल सेविंग द ऑटोकैड फाइल। दे आपको ध्यान में रखना है, कभी भी आपको नई फाइल आपकी तैयार हो गई तो चलेगा। सो एट प्रेजेंट करेक्ट आंसर इज आई हैव टू प्लेस क्लिक नो। लेकिन अभी चूंकि हमारा पहला दिन है, हम लोग सीख रहे हैं, तो मैं अभी यहां पर क्या करने वाला हूं, ड्राइंग वन को मैं रिप्लेस करने वाला हूं। लेकिन आपको मैंने बता दिया नेवर रिप्लेस द फाइल। तो अभी मेरा यहां पर क्या हो गया, ये मेरे ऑटोकैड की जो फाइल है ये ड्राइंग वन डॉट डब्ल्यूजी नाम से सेव हो गई है। अब ये फाइल सेव कहां पर हो गई ये मुझे पता नहीं है। सो व्हाट आई हैव टू डू, अभी मैं ये ऑटोकैड की फाइल को मैं यहां से बंद कर देता हूं। आई विल क्लोज दिस ड्राइंग, ऑटोकैड बंद कर देता हूं मैं अभी। तो आई हैव क्लोज द ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आज का काम हो गया मेरा। अभी मैं अगले दिन फिर से ऑटोकैड के आइकॉन के ऊपर राइट क्लिक करूंगा। आई विल राइट क्लिक ऑन द ऑटोकैड आइकॉन, देन क्लिक ऑन द ओपन, एंड नाउ ऑटोकैड विल स्टार्ट, एंड नाउ आई हैव टू ओपन दैट अर्लियर ड्राइंग। सो व्हाट आई हैव टू यूज दिस मेथड, कौन सी मेथड हमको इस्तेमाल करनी है? सो देर आर टू मेथड्स आर देयर जनरली, फर्स्ट इज ओपन ए ड्राइंग एंड सेकंड इज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो ऐसे समय में मुझे कौन सी मेथड का इस्तेमाल करना है, 1 और 2? इसका आंसर मुझे चैट बॉक्स में चाहिए। सो यू जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। सो मैंने मेरी ड्राइंग ऑलरेडी सेव कर चुका हूं मैं, अभी मुझे दूसरे दिन उसी ड्राइंग में काम कंटिन्यू करना है। तो मैं अभी ये दोनों में से कौन सी मेथड ऑटोकैड की शुरू करने के लिए इस्तेमाल करूंगा, सो दैट यू हैव टू आंसर। सो सम मे से दैट इट विल बी ए 1, सम मे से इट विल बी ए 2। सो करेक्ट आंसर इज आई हैव टू यूज ओपन ए ड्राइंग। लेकिन ओपन ए ड्राइंग करते समय मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी ड्राइंग जो है ये कहां पर सेव है। अभी मुझे यहां पर दिख रही है, मेरी ड्राइंग दिख रही है ओपन ए ड्राइंग में, ड्राइंग वन। तो अभी ये ड्राइंग वन को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, एंड नाउ देन आई विल क्लिक ओके। तो अभी मेरे पास में पुरानी जो ड्राइंग है ड्राइंग वन नाम की, वो ओपन हो जाएगी। सो दैट इज द करेक्ट प्रोसीजर कि आपको ओपन ए ड्राइंग में जाके आप देख सकते कि जो फाइल मैंने बनाई थी वही वाली फाइल अभी यहाँ पर बराबर शुरू हुई है। इसके अंदर मैंने रेक्टेंगल, सर्कल, पॉलीगॉन और इलिप्स बनाया था। सो दिस इज द ओनली सिंपल केस। बट अगेन नाउ यू हैव टू सी दैट अब मैंने ये जो ऑटोकैड की फाइल सेव करी है, इसका नाम मुझे मालूम है, दैट इज नेम इज ड्राइंग वन डॉट डब्ल्यूजी, एंड नाउ आई हैव डन सम ऑफ द मॉडिफिकेशंस। और अब ये फाइल को मुझे फिर से ऑटोकैड का काम मैंने बंद कर दिया आज। तो अभी मुझे क्या यहां पर बोलना पड़ेगा? सो इट इज सेइंग दैट सेव चेंजेस टू ड्राइंग, सेव करना है यहां पर। तो मुझे यहां पर क्या बोलना पड़ेगा? सो आई हैव टू क्लिक हियर अगेन, सेव चेंजेस टू क्या बोलना पड़ेगा मुझे, यस या नो बोलना पड़ेगा। सो आई हैव टू टाइप हियर यस, क्योंकि जो भी ड्राइंग में मैं करेक्शन करता हूं मुझे उसको सेव करना है हमेशा, ये आपको याद रखना है। सो आई विल से हियर एस। सो आफ्टर एवरी चेंजेस योर ड्राइंग विल ऑटोमेटिकली गेट सेव। अब ये वाली जो ड्राइंग फाइल है ये मुझे दूसरे को देना है पेन ड्राइव में कॉपी करने के लिए। तो अब ये ड्राइंग मेरी कहां पर सेव है? तो कैन एनीबॉडी टेल मी दैट वेयर इज माय ड्राइंग वन फाइल? आप चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि मेरी ड्राइंग की फाइल कहां पर सेव करके रखी है। सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स कि मेरी ड्राइंग की फाइल कहां पर सेव की होगी मैंने अभी। या आपको क्या मालूम है कि आपने देखा, क्या ध्यान दिया क्या आपने?
सो यू हैव टू राइट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मेरे ऑटोकैड की ड्राइंग 1 फाइल जो है वो मैंने कहां पर सेव किया है, तो मुझे वहां से अभी कॉपी करके पेन ड्राइव में देना है। सो वेयर इज माई ड्राइंग फाइल? सो यू हैव टू गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। मैंने मेरी ऑटोकैड की ड्राइंग कहां पर सेव किया है? सो कैन गिव एनीबडी आंसर? So one answer I have got from the Sakshi. So she is saying that this fits. The another, everybody has to give the answer. This is the important part, important topic. तो ये फाइल आपने कहां पर सेव की है ये आपको पहले मालूम होना चाहिए. सो यू हैव टू सी दैट ये आपने फाइल सेव की है बाय डिफॉल्ट. जब हम लोग ऑटो कैड में कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, सो अनदर आंसर आई गॉट दैट इज माय कंप्यूटर, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. अनदर कंप्यूटर दैट इज डेस्कटॉप, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो देयर दैट आल्सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपने आपकी ड्राइंग की फाइल कहां सेव की है ये आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपके आंसर वैसे बता रहे हैं आप सब लोग. सो ऑल द आंसर्स आर रॉन्ग. So that is another answer given, that is also wrong. So all of you whatever you are answer giving, all the answers आपके सारे आंसर गलत है. आपने ड्राइंग फाइल कहाँ सेव की है ये आपको पता नहीं है. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट मिस्टेक. इसीलिए आज का सेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर कि मैं ऑटोकैड में काम कर रहा हूँ. आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर और मेरे ऑटोकैड के फाइल को, जो इंपॉर्टेंट फाइल है मेरे क्लाइंट की, वो कहां पर सेव किया यही मुझे मालूम नहीं है. तो इसीलिए ये सेशन की जरूरत है, ऑटोकैड के सेशन की, हाउ टू सेव द फाइल इन द ऑटोकैड. तो आपको ये ध्यान देना है कि जब हम लोग, अगेन आई विल ओपन द ऑटोकैड. अभी मैं यहाँ पे ऑटोकैड ओपन करता हूं. ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे फिर से एक नई फाइल बनाता हूं जिसका नाम मैं अभी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से मैं शुरू करूंगा और मैं उसको ओके बोलूंगा. और ओके बोलने के बाद में मैं फिर से यहाँ पर अभी, अब मेरे पास में फिर से एक ड्राइंग 1.dw एक ब्लैंक फाइल आ गई. अभी इसके अंदर मैं फिर से अभी और एक ड्राइंग मैं बनाता हूं जो मुझे थोड़ा सा याद रखने के लिए रहेगा कि एक सर्कल बनाया मैंने, उसके अंदर फिर से मैंने और एक सर्कल बनाया और उसके अंदर फिर और एक सर्कल बनाया. दिस इज जस्ट आई एम सैंपल ड्राइंग क्रिएटिंग, यानी आपको ही पता चले. अब ये वाले जो ड्राइंग में मैंने दूसरा ड्राइंग बनाया, अब यहाँ पे इस फाइल को मैं फिर से सेव की कमांड देने वाला हूं. सो आई विल गो टू द फाइल मेनू. फाइल मेनू में जाके यहाँ पे मैं फिर से सेव की बटन दबाऊंगा. तो जब सेव की बटन दबाऊंगा तो मेरे फाइल का नाम फिर से ड्राइंग 1 आ गया. अब यदि मैं सेव बोलूंगा तो पुरानी वाली ड्राइंग 1 जो फाइल है वो गड़बड़ हो जाएंगी, वो गायब हो जाएंगी और ड्राइंग 1 नाम की दूसरी फाइल सेव हो जाएंगे. ऐसा मुझे नहीं चाहिए. इसीलिए मैंने आपको बताया है कि यू शुड नॉट नेवर रिप्लेस एनी फाइल. तो आपको इसको नाम देना पड़ेगा ड्राइंग 2. ये ड्राइंग 2 नाम दूंगा मैं इसको, यानी ये दूसरी ड्राइंग यहाँ पे मेरी तैयार हो जाएगी. तो लेकिन अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि ये ड्राइंग मेरी कहां सेव हो रही है. सो यू कैन सी दैट दिस इज ए सेव ड्राइंग एज डायलॉग बॉक्स. यहाँ पे सेव इन के अंदर यहाँ पर क्या लिखा है आप पढ़ेंगे मेरे एरो के पास में. सो व्हाट इज गिवन हियर, यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स. सो आपकी फाइल कहां पर सेव हो रही है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल रहा है. सो यू आर सेविंग योर फाइल ऑन द सी ड्राइव यूजर डेल, डेल के अंदर डॉक्यूमेंट, यानी आपके लैपटॉप के डॉक्यूमेंट फोल्डर में आपको सेव कर रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो बाय डिफॉल्ट एनी फाइल इफ यू से सेव बाय मिस्टेक इन द AutoCAD, so that file will automatically get saved in the document folder. तो अभी ये ड्राइंग 2 को मैं यदि यहाँ पर सेव बोलता हूँ, so this file also will get saved in the document folder. So that is the important thing you have to remember. So in this डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर जो आपकी फाइल सेव हो चुकी है वो फाइल अभी मुझे देखना है. तो मैं फिर से अभी ये AutoCAD को बंद कर देता हूं. सो आई विल जस्ट सी दैट एंड नाउ वेयर आई विल गो टू माय कंप्यूटर और यहां से मैं ओपन करूंगा माय कंप्यूटर को मेरे, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है फोल्डर, लेफ्ट साइड में देखेंगे डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है. सो दिस इज डॉक्यूमेंट फोल्डर. और डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर आप अभी देख सकते हैं कि आई विल फाइंड दिस ड्राइंग 1 एंड ड्राइंग 2. तो मेरे AutoCAD के डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2 नाम की फाइल अभी सेव हो चुकी है. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट डिफॉल्ट ड्राइंग कहां पर सेव होती है AutoCAD के अंदर? इट इज इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर. सो इट इज टाइप C फॉर क्लियर इन द चैट बॉक्स. सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये सारी चीजें सिस्टमैटिक ढंग से मालूम होनी चाहिए. हाउ टू करेक्टली सेव द फाइल. So
there are, I have seen that only 2-3 students are there, only they are responding in the chat box. बाकी के स्टूडेंट यहाँ पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. सो everybody has to give the quick response in the chat box. तो आपको ये ध्यान में समझ में आ गया कि अभी जो ऑटोकैड में हम लोग कोई भी फाइल को सेव करते हैं तो उसका नाम भले ही अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो ड्राइंग डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर सेव होती है. तो ये डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर ये जो ड्राइंग आपने सेव की है, अभी आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक जगह पे मैंने जो रेक्टेंगल और पॉलीगॉन वगैरह निकाला था, दूसरे वाले फाइल में मैंने 2 सर्कल वगैरह निकाले थे. तो ऐसी 2 फाइल यहाँ पर तैयार हो गई है. कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी ड्राइंग को बनाते समय वो ड्राइंग को देखने के लिए हमको पता नहीं रहता कि हमने क्या करना है करके, एंड व्हाट वी डू, वी सेव दिस फाइल ऑन द डेस्कटॉप. तो कितने लोगों को यहाँ पर इसके पहले आपको पता है कि आप लोगों ने फाइल जो है वो आपकी डेस्कटॉप पे सेव करी है? क्योंकि इसके पहले आपको मैंने जब पूछा था तो आप काफी सारे लोगों ने मुझे आंसर दिया था डेस्कटॉप 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 करके. सो वेन एवर यू आर सेविंग द ड्राइंग, कभी कभी हम लोग, कभी कभी का मतलब है ऑलवेज वी ट्राई टू सी दैट कि हम हमारी फाइल डेस्कटॉप पे सेव करते हैं. सो नाउ आई वांट टू नो दैट कि सही तरीका क्या रहेगा कि आप आपकी फाइल डेस्कटॉप पे सेव करेंगे या आपकी फाइल डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव करेंगे. सो 1 और 2, 1 फॉर डेस्कटॉप, 2 फॉर डॉक्यूमेंट फोल्डर. तो आपका आंसर आपको 1 या 2 के अंदर टाइप करना है. सो व्हाट इज द करेक्ट वे? आपको आपकी फाइल डेस्कटॉप पे यानी 1 नंबर पे सेव करना है या डॉक्यूमेंट में, माय डॉक्यूमेंट में सेव करना है, दैट इज 2 नंबर. सो नाउ यू नो दैट कि that is the another important tip in the today's class. ये आपको ध्यान में रखना है कि never save any file in on the desktop. जो इंजीनियर होता है, जो ऑटोकैड के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहता है, वो कभी भी डेस्कटॉप पे कोई फाइल सेव नहीं करता है. सो दैट इज द अनदर इंपॉर्टेंट टिप यू हैव टू रिमेंबर. फिर आपकी फाइल आप सेव कहां करेंगे? तो आपने अभी बोला है कि 2 नंबर, यानी वी विल सेव आवर ड्राइंग इन द डॉक्यूमेंट फोल्डर. सो टिप नंबर 2 फॉर दिस इज, आपको डॉक्यूमेंट फोल्डर में भी आपकी फाइल सेव नहीं करना है. सी दैट you should never save your file in the document folder. That is tip number 2. So I hope that it is very clear to all of you. You will never save your drawing on the desktop and also not save the drawing file in the document. तो आप ये भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा यदि डॉक्यूमेंट फोल्डर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे ड्राइंग 1 और ड्राइंग 2, ये 2 ही फाइल आपको सिर्फ दिख रही है. बाकी कोई फाइल मैंने यहाँ पे माय डॉक्यूमेंट में एक गलती से ये दिवाली लैम्प की एक छोटी सी फाइल थी मेरी, बाकी कोई मेरी ऑटोकैड की फाइल यहाँ पर सेव नहीं है. दो हो सकता है कि हफ्ते में मैं 4-5 क्लाइंट के ड्राइंग बनाता हूंगा, लेकिन आप देखेंगे कि मेरे डॉक्यूमेंट फोल्डर में यहाँ पर दिख रहा है दिस पीसी एंड डॉक्यूमेंट. ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में मेरी कोई ऑटोकैड की फाइल नहीं दिखेगी और ना तो मेरी कोई फाइल मेरे डेस्कटॉप पे भी सेव है. सो ऑल दिस 2 इंपॉर्टेंट टिप्स यू हैव टू रिमेंबर. थर्ड टिप क्या है फिर हमारी? सो व्हाट इज द प्रोसीजर? तो सही प्रोसीजर हमारी क्या है सेव करने की, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं. सो टाइप आई इन द चैट बॉक्स सो दैट यू आर इंटरेस्टेड टू नो दिस थिंग कि ऑटोकैड की ड्राइंग फाइल सेव करने का सही तरीका क्या है. यदि आपको ये जानना है तो आप चैट बॉक्स में आई टाइप करेंगे, इंटरेस्टेड, यू आर इंटरेस्टेड इन द चैट बॉक्स. सो टाइप आई इन द चैट बॉक्स सो दैट आई विल जस्ट शेयर विद दिस द करेक्ट प्रोसीजर ऑफ सेविंग द ड्राइंग. तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि करेक्ट प्रोसीजर क्या है. सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन शट डाउन दिस फोल्डर. अभी मैं फिर से ऑटोकैड को सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करूंगा. ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में मेरा ऑटोकैड के अंदर मुझे एक नई फाइल बनानी है आज. सो व्हाट इज द करेक्ट वे, सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. तो सबसे पहला काम है कि आपने फाइल बनाई, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से आपने शुरू कर दिया. स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से शुरू होते बराबर आप ओके बोल देंगे. यहाँ पर आपका ड्राइंग ऑटोकैड का शुरू हो जाएगा. ऑटोकैड का ड्राइंग होने के बाद में व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू रिमेंबर, कि क्या करना है हमको. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी हमारी? तो हमारी ऑटोकैड की फाइल खुल गई. तो ऑटोकैड की फाइल खुलने के बाद में आपको चाहिए तो यहाँ पर कुछ छोटा सा ड्राइंग यदि आपको बनाना है. फॉर एग्जाम्पल
नाउ टुडे आई विल स्टार्ट, कि मुझे समझ लो अलग अलग टाइप के पॉलीगॉन बनाने की फाइल सेव करना है। तो आई विल डू, सपोज मैं यहाँ पे ड्राइंग बना लेता हूँ दो चार, दिस इज सैंपल, आई एम जस्ट शोइंग यू सैंपल। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर ऑफ साइड 4 वाला एज मेथड से मैंने एक स्क्वायर बना लिया यहाँ पर। सो आई हैव जस्ट ड्रॉन वन स्क्वायर। Then again I have started polygon command, number of side I have done is 5, enter, then edge method, enter, and then I have drawn one pentagon here. So this is another command just I have used. So this is one pentagon. Then again I will start the same command by pressing the space bar. Now I will type 6 for the hexagon, then I will type E for the edge method, and then I will draw one hexagon here. Then again I will press space bar to repeat the command. Then I will type 7 or I will type 8 for octagon, and then I will type E for edge method, and then I will click here 1 point and click here 1 point, and I will draw one octagon. So in this way आपका जो भी इनिशियल थोड़ा सा काम होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इनिशियली यू विल डू व्हाट दैट यू विल ड्रॉ सम ड्राइंग। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो आपको देना है यहाँ पर, और वो कमांड का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे जाना है, फाइल मेनू में जाना है, और फाइल मेनू में हम लोग उसको नाम देंगे सेव। जब हम लोग यहाँ पर सेव को क्लिक करेंगे, सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि आपका फाइल जो है वो सेव होने वाला है कहां पर, डॉक्यूमेंट में। लेकिन हमको डॉक्यूमेंट में सेव करना नहीं है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। डोंट सेव एनी ऑटोकैड फाइल ऑन द डेस्कटॉप, और डोंट सेव एनी ऑटोकैड फाइल ऑन द डॉक्यूमेंट फोल्डर। तो कहां सेव करेंगे, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, सो यू हैव टू ओपन डी ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर। डी ड्राइव ओपन करेंगे हम लोग, और इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको एक फोल्डर बनाना है डी ड्राइव पे, जिसका नाम रहेगा ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग। ये वाले फोल्डर को आप सिलेक्ट करेंगे, और यहां पर फिर आपको यहां पे नीचे आपको फाइल का नाम देना है। सो यू आर सेविंग यूर फाइल इन द ऑटोकैड ड्राइंग फोल्डर। तो मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरा ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग का फोल्डर अभी यहां पर खुल गया है, यानी मेरी जो फाइल सेव होगी वो डी ड्राइव पे ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग वाला जो फोल्डर है वहां पर सेव होने वाली है। और अब मुझे फाइल का नाम देना है। सो व्हाट आई विल गिव हियर, सो फाइल के नाम देने के लिए दो तरीके आपको भी याद रखना है। पहला है, यदि आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो किस असाइनमेंट का नाम है उसके हिसाब से आपको असाइनमेंट 1 ड्राइंग, असाइनमेंट 2 ड्राइंग, असाइनमेंट 3 ड्राइंग, या पॉलीगॉन ड्राइंग, रेक्टेंगल ड्राइंग, सर्कल ड्राइंग, या पोलर कोऑर्डिनेट ड्राइंग, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो फाइल का नाम आप देंगे। सपोज अभी मैंने यहाँ पे पॉलीगॉन बनाया है तो मैं यहाँ पर ड्राइंग का नाम दूंगा POLYGON, पॉलीगॉन ड्राइंग। और पॉलीगॉन ड्राइंग के सामने मैं इनिशियल में मेरा नाम लगाऊंगा PVK। इसका मतलब ये है कि ये PVK का ड्राइंग है, यानी प्रवीण वेंकटराव खांडवे का पहला पहला लेटर मैंने वहां पे ले लिया। सो दैट इज माय नेम इनिशियल। इनिशियल का मतलब है कि मेरे सभी नामों का पहला पहला वर्ड। सो आई हैव यूज PVK। देन पॉलीगॉन ड्राइंग में बनाने वाला है मेरा, इसलिए मैंने उसको नाम दिया पॉलीगॉन ड्राइंग, और यू कैन से पॉलीगॉन प्रैक्टिस, ऐसा भी दे सकते हैं आप, पॉलीगॉन प्रैक्टिस। और फिर आप ये वाले फाइल को सेव करेंगे। तो पॉलीगॉन की प्रैक्टिस जो आपने फाइल में की है वो वाली फाइल आपके नाम के साथ में PVK पॉलीगॉन प्रैक्टिस, तो यहां से आपको सेव करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि ये जो फाइल है वो सेव होगी अभी डी ड्राइव पे मेरे ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग के फोल्डर में। ऑलरेडी मैंने डी ड्राइव पे एक फोल्डर बनाया था बिल्डिंग ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग नाम का, और उसके अंदर मैं यहाँ पर अभी सेव करूंगा। सो दैट इज द करेक्ट वे ऑफ सेविंग द ड्राइंग। तो इस प्रकार से आपको फाइल सेव करना है। सो टाइप सी इन द चैट बॉक्स इफ यू गॉट दिस क्लियर। आपको ये समझ में आ चुका है तो आप सी टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, तो आपको ऑटोकैड की फाइल सही तरीके से सेव करने का फॉर्मूला पता चल गया है। सो आपको इनिशियल का नाम देना है PVK जैसा मैंने दिया था, और उसके अंदर जो ड्राइंग होगा उसके हिसाब से नाम देना है। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट टिप फॉर द टुडे। अब ये तो हो गया हमारे असाइनमेंट की प्रैक्टिस हम लोग जब कर रहे हैं उसके लिए। अभी सपोज मुझे मेरे क्लाइंट का काम करना है, तो क्लाइंट का काम करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे। सो आई विल अगेन क्लोज द ऑटोकैड, देन वी विल सी दैट कि हम लोग फिर से मैं अभी ऑटोकैड का ड्राइंग शुरू करूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन द राइट क्लिक ऑन द ऑटोकैड आइकॉन, देन आई विल गो टू ओपन, एंड ऑन द ओपन कमांड आई विल यूज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज क्योंकि मुझे नई फाइल बनानी है।
सो हाउ आई विल सी, वी विल सी लेटर ऑन कि ये सारा देखेंगे हम लोग। अभी मैं स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच से मेट्रिक सिस्टम का यूज करूंगा, यानी मिलीमीटर का डायमेंशन मेरा यहाँ पर यूज होने वाला है। एंड नाउ आई विल क्लिक ओके, और ओके बोलने के बाद में मेरी ऑटोकैड की फाइल जो है वो शुरू होना शुरू हो गई यहाँ पर अभी। एंड नाउ what I will do first, that also you have to remember. So once the AutoCAD file was get loaded, then you have to draw a plot size in the drawing. वो ड्राइंग के अंदर आपका जो प्लान बनाने के लिए आपके पास में जो भी डाटा आया वाला होगा किसी ओनर का, उसके जो प्लॉट की साइज होगी वो आपको वहां पर ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो ये मेरी प्रोसीजर है, दैट ऑल्सो यू शुड अडॉप्ट। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा जो प्लॉट है वो 12 मीटर बाय 18 मीटर का है। फॉर एग्जाम्पल माई प्लॉट साइज इज 12 मीटर बाय 18 मीटर। सो आई हैव टू ड्रॉ माई प्लॉट ऑन द ऑटोकैड फाइल। तो मैं अभी यहाँ पर अभी देखेंगे तो आप ये फाइल का नाम है drawing1.dwg, क्योंकि ऑटोकैड में डिफॉल्ट फाइल का नाम जब तक सेव नहीं करते तब तक drawing1.dwg ही रहता है। सो नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट अ रेक्टेंगल कमांड। नाउ आई विल क्लिक एनीवेयर इन द पॉइंट, आपको मुझे कभी भी मैं कहीं भी क्लिक करूंगा। और अब मुझे मेरे प्लॉट की साइज टाइप करना है। सो व्हाट आई विल डू, ये प्लॉट की साइज टाइप करने के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा एट। सो यू कैन जस्ट सी दैट दिस विल बी सीन ऑन द कमांड लाइन। आपको कमांड लाइन पे ये सारा दिख रहा होगा आपको। एट मैंने टाइप किया है, अभी मैं यहाँ पर टाइप करूंगा 12,000। सो आई हैव टू टाइप ऑन द कमांड लाइन, यू कैन जस्ट सी हियर 12000 कॉमा 18000, यानी मैंने यहाँ पर x कॉमा y कोऑर्डिनेट दे दिए। यानी रेक्टेंगल का दूसरा जो कोऑर्डिनेट है वो 12,000 mm बाय 18,000 मिलीमीटर होगा। उसका मतलब है कि 12 बाय 18 की मेरी ड्राइंग की फाइल तैयार हो जाएगी, प्लॉट की साइज निकल जाएगी यहाँ पर। एंड आई विल प्रेस एंटर। सो यू कैन सी दैट दिस इज द प्लॉट ड्रॉन फॉर माय ड्राइंग। लेकिन ये 12 मीटर बाय 18 मीटर का है, तो मिलीमीटर में मुझे डायमेंशन टाइप करना है। सो 12,000 कॉमा 18,000। लेकिन अब ये ड्राइंग की फाइल इतनी बड़ी हो गई कि मेरा प्लॉट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो फॉर दैट व्हाट इज द कमांड, तो आपको मैंने इसके पहले भी बताया था कि आपको आपके माउस का मिडल बटन डबल क्लिक करना है। यू हैव टू डबल क्लिक द मिडल माउस बटन एंड दैट पॉपुलर कमांड इज जूम एक्सटेंड। सो यू कैन सी दैट आई हैव प्रेस्ड द डबल क्लिक बटन ऑफ सेंटर बटन। जो मेरा व्हील है मेरे माउस का उसको डबल क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे जूम एक्सटेंड यू कैन जस्ट वॉच ऑन द कमांड लाइन। सो दिस इज सेज दैट जूम अंडरस्कोर ई, यानी जूम एक्सटेंड की कमांड है। जूम एक्सटेंड का मतलब यह है कि मेरा जितना बड़ा ड्राइंग है वो पूरा का पूरा स्क्रीन में एट ए टाइम दिखाओ। सो दैट इज जूम एक्सटेंड। सो होल ड्राइंग शुड अपीयर एट वंस ऑन द स्क्रीन। सो ये मेरा अभी 12,000 कॉमा 18,000 का प्लॉट मेरा तैयार हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप यू हैव टू रिमेंबर व्हेन यू आर वर्किंग फॉर योर क्लाइंट। तो क्लाइंट के लिए ड्राइंग शुरू करते समय आपको 12,000 बाय 18,000 का प्लॉट साइज बना लिया, और अब मैं फाइल मेनू में जाऊंगा एंड देन आई हैव टू गिव द सेव कमांड। तो सेव कमांड देने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे ध्यान में रखना है कि मुझे यहाँ पर जाना है माय कंप्यूटर में जाके मैं डी ड्राइव पे जाऊंगा, और डी ड्राइव पे जाने के बाद में मैं ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग पे क्लिक करूंगा। ये मेरा फोल्डर ओपन हो गया जो डी ड्राइव पे मैंने पहले से बना के रखा था, और अब मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है। तो ये फाइल का नाम देने का तरीका आपको ध्यान में रखना है। सपोज दिस प्लॉट जिसका ये ड्राइंग में बनाने जा रहा हूं वो ओनर का नाम सपोज जो भी होगा वो नाम आपको देना होगा। यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन, यहाँ पे मैंने लिखा है जैसा कि मैंने फाइल के डेट दी है, देखो 12/2/2024 आनंद ढगे 2024 का काम है ये मेरा। तो यहाँ पर क्लाइंट का नाम मुझे लिखना है। यू कैन ऑलवेज सी दैट आसावा वाशी, वाशी यानी मुंबई का जॉब है ये, देन अमलानी रेसिडेंट, देन अडाऊ कॉम्प्लेक्स। तो इस प्रकार से आपको नाम देने हैं। लेकिन यदि आप एक ही ड्राइंग के रिवीजन करते हैं बार बार तो आपको उसके साथ में डेट भी लिखनी चाहिए कि कौन सा ड्राइंग कौन से डेट को आपने सेव किया था। सो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव द क्लाइंट सरनेम। तो क्लाइंट का सरनेम आप यहाँ पर लिखेंगे। सपोज आई विल जस्ट टाइप हियर क्लाइंट नेम वाज सपोज तिजारे, और ये तिजारे का जो ड्राइंग है ये 2024 का है, या उसकी तारीख है ये समझ लो 22/9/2024। सो इन दिस सॉरी 25। सो इन दिस वे
अब ये रेसिडेंस होगा तो दैट ऑल्सो यू कैन मेक द डिफरेंस। कभी कभी बहुत सारे क्लाइंट के नाम एक जैसे आते हैं आपके पास। तिजारे नाम का क्लाइंट हो सकता है जिसका घर होगा, और तिजारे नाम का क्लाइंट हो सकता है जिसका खेत होगा या जिसका कॉम्प्लेक्स होगा। सो यू हैव टू राइट डाउन हियर तिजारे रेसिडेंस। यानी ये जो ऑटोकैड की फाइल है ये तिजारे ओनर की है, जो जिसके लिए मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ, प्रोफेशनल ड्राइंग। उसका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है और वो तारीख है 22/9/2025। और फिर अभी ये फाइल मैं सेव करूंगा तो अभी मेरी जो फाइल है जो भी मैंने बनाई होगी वो मेरी फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। सो इन दिस वे यू हैव टू सी दैट। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर टॉप के अंदर ये जो ड्राइंग स्क्रीन दिख रही है आपको, यहाँ पर लिख के आ गया D:// AutoCAD बिल्डिंग ड्राइंग एंड तिजारे रेसिडेंस 22/9/2025.dwg। सो इन दिस वे दिस इज द करेक्ट वे। आपके जो फाइल है आपके क्लाइंट का सरनेम आपको लिखना है, रेसिडेंशियल या पब्लिक बिल्डिंग है या खेत है, लैंड है या जो भी है आपका, उसका टाइप लिखना है, कौन से टाइप का काम है ये आपका, जो लेआउट है बिल्डिंग का, सेंटर लाइन प्लान है, स्ट्रक्चरल डिजाइन है, लाइक वे, और डेट देना है आपको। शुरू में आपको प्लानिंग बनाते समय आपको बार बार आपको एक ही ड्राइंग को रिवाइज करना पड़ता है। तो ऐसे डेट में कौन सी लेटेस्ट फाइल है ये आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे फाइल के नाम के साथ में डेट डालनी पड़ेगी। सो दिस वे वी विल सेव अवर ऑल द फाइल्स ऑन द डी ड्राइव। तो इस प्रकार से आप डी ड्राइव में आपकी सारी फाइल सेव करेंगे। अब इसके अंदर आपको जो भी कुछ सेव करना है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो प्लॉट बनाया था 12,000 बाय 18,000 का, उसके बीच में मेरा ये आइकॉन आ चुका है। तो ये आइकॉन कैसे हटाएंगे यहाँ से? सो दैट ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू फाइंड आउट द वे कि ये यूसीएस आइकॉन यहाँ से कैसे हटेगा। सो आई विल ट्राई ऑन द कमांड लाइन। यहाँ पर मैं टाइप करूंगा यूसीएस आइकॉन, ऐसे मैंने टाइप किया, और यूसीएस आइकॉन के अंदर यहाँ पे मुझे उसको अलग अलग ऑप्शन को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ऐसे आपको अलग अलग कमांड लाइन के जरिए यूसीएस आइकॉन को आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे यहाँ पर समझने वाली है। सो यू हैव टू यूज दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर कि आपका ये यूसीएस आइकॉन यहाँ से हट जाए। तो मैं अभी उसको यहाँ से उठा के इधर रख देता हूँ एट अनदर लोकेशन। तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे, एंड देन आई हैव टू क्लोज दिस। सो देयर इज अनदर ऑप्शन कि यहाँ पे आपको ये जो है ये मूव करके रखना है। ये कैसे करना है? सो दैट यू हैव टू फाइंड। कल हम लोग इसको और आगे बढ़ाने वाले, ये ड्राइंग को कैसे आगे बढ़ाने वाले करके। सो देयर टुडे वी हैव सीन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स। तो सबसे पहले हमारे आज की इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है कि कोई भी फाइल, ऑटोकैड की फाइल डेस्कटॉप पे सेव नहीं करना है, टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 है माय डॉक्यूमेंट में भी कोई भी फाइल सेव नहीं करना है। टिप नंबर 3 क्या है आज की? तो आपको आपके सी ड्राइव को छोड़ के डी ड्राइव या ई ड्राइव या एफ ड्राइव, वहां पर आपको एक फोल्डर बनाना है, जो फोल्डर का नाम रहेगा ऑटोकैड ड्राइंग फाइल्स, और उसी के अंदर आपकी सबकी सब फाइल आप सेव करेंगे। सो दैट इज टिप नंबर 3। नाउ इन दैट फोल्डर whenever you are file saving any file, so you have to give the client name and type of building or type of work and date for that file. So that is the correct way of saving the AutoCAD file. Now these are the 3 tips already we have seen his practical. Fourth tip क्या है आज की? So that fourth tip you have to remember, and that tip is after, अभी समझ लो मैंने यहाँ पर कुछ तो भी काम किया, ये जो रेक्टेंगल है इसको मैंने थोड़ा सा अभी क्लिक किया मैंने, और इसको यहाँ से थोड़ा सा मूव करके मैंने कुछ तो भी और दूसरी जगह पे रखा, ऐसा कुछ तो भी किया मैंने। सो ऐसा जब भी करूंगा मैं, तो मुझे क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे जाके सेव बोलते रहना है। सो आई ऑल्सो क्लिक अगेन सेव। तो ये मेरा जो अपडेट किया वाला ड्राइंग है वो सेव हो गया। सो गुड प्रैक्टिस इज दैट जो एक्सपर्ट ऑटोकैड का लर्नर होता है वो हर 2-3 मिनट के बाद में ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आप यहां पर टाइप करेंगे SAVE सेव और एंटर प्रेस करेंगे, तो आपकी वो फाइल जो है वो सेव करने के लिए फिर से ओपन हो गई। तो यहाँ पे आपको ये फाइल को इस प्रकार से सेव करने के लिए यदि आप जाएंगे और यहाँ पे सेव बोलेंगे तो वो आपको फिर से पूछेगा कि क्या आपको रिप्लेस करना है क्या।
तो ये वाला प्रोसीजर आपके पास लिए सही नहीं है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर कि आपको सेव बोलने के लिए यहां से जाके ही, फाइल मेनू से जाके ये सेव बटन पे ही क्लिक करना पड़ेगा। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यदि मुझे इस प्रकार से फाइल को बार बार यदि सेव करना है तो मैं कमांड लाइन पे क्या लिखूंगा ताकि मेरी फाइल तुरंत सेव हो जाए? सो क्या कोई बता सकता है ये टिप किसको मालूम है कि फाइल मेनू में जाके सेव बोलने के बजाय मैं और कोई तरीके से फाइल को सेव कर सकता हूं क्या? यस, सो आई गॉट द आंसर कि मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। सो आंसर वाज गिवन बाय ज्ञानेश्वरी डवरे एंड शी इज सेइंग दैट टू सेव द फाइल व्हाट इज द कमांड, दैट इज कंट्रोल एस। कंट्रोल एस करेंगे। सो कितने लोगों को लगता है कि ये कमांड आपको मालूम थी? सबको मालूम थी ये कंट्रोल एस कमांड, लेकिन किसी ने बताया नहीं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू रिमेंबर दैट ये जब भी आप कोई ड्राइंग के अंदर करेक्शन करते हैं और आपको आपकी फाइल यहां से फाइल मेनू में जाके सेव के बटन दबा के सेव करना है, तो इसके लिए आप कभी भी कमांड लाइन से सेव कर सकते हैं या फिर फाइल मेनू से सेव कर सकते। लेकिन टिप टिप क्या है आपकी इंपॉर्टेंट? कंट्रोल एस नहीं करना है। प्लीज रिमेंबर दैट नेवर शुड गेट द प्रैक्टिस विथ कंट्रोल एस। मैं आपको बता दूं कि देर आर सो मेनी चांसेस आर देयर कि कंट्रोल एस करते समय गलती से आपका कंट्रोल डी दब गया या कंट्रोल ए दब गया या कंट्रोल ए और डी एस के बाजू में होता है तो दूसरा ही कोई तो भी फंक्शन हो जाएगा एक्सीडेंटली। सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो इंपॉर्टेंट टिप फॉर सेविंग द फाइल कि आप कंट्रोल एस की कमांड कीबोर्ड से दे सकते हैं, बट यू शुड गेट वेरी कंफर्टेबल दैट कि आप प्रॉपरली कंट्रोल और एस को बराबर प्रॉपरली दबा रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन आपके पास में क्या हो सकता है कि आप यहां पे क्यू सेव ऐसा टाइप कर सकते हैं और एंटर दबा सकते। सो दैट इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट स्मॉल टिप कि आप कंट्रोल एस की आदत नहीं डालेंगे कभी भी कंप्यूटर पे काम करते समय। वर्ड, एक्सेल, ऑटोकैड, पावर पॉइंट और इन एनी सॉफ्टवेयर आपको ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल एस से कभी भी फाइल सेव मत करो, क्योंकि कंट्रोल एस करते करते यदि गलती से कंट्रोल ए दब गया तो कंट्रोल ए इज सिलेक्ट ऑल, और गलती से स्पेस बार दब गया तो स्पेस बार मतलब डिलीट, तो आपके फाइल में जो है वो सिलेक्ट ऑल और डिलीट हो जाएगा। तो इसीलिए कंट्रोल एस की कमांड की प्रैक्टिस रखो मत। तो सिंपल वे इज, आपके हाथ में माउस है, यदि आप ड्राइंग का काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाके धीरे से जाके ये जो सेव है इसको क्लिक करना है, तो आपकी ड्राइंग फाइल सेव होते रहेगी। इसके लिए और एडवांस टिप्स भी है, वो मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। सो आई होप दैट these tips, important tips are there which are not known to earlier and these are very much important। ये कई सारी बातें हैं जो एक्सपर्ट ऑटोकैड के यूजर को एक्सपर्ट बनाती है। सो इन दैट वे नाउ यू हैव टू वर्क। सो आई होप दैट यू हैव लाइक ऑल दिस 4 टिप्स। आपको ये चारों भी टिप्स पसंद आई होगी और आप इसी की आदत डालेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू टाइप योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। सो टुडे वी विल स्टॉप हियर। मैंने सोचा था कि आज का लेक्चर भी हम लोग आधे घंटे का लेंगे, बट हाउ नाउ इट वाज अगेन गेट एक्सटेंडेड टू टिल 50 मिनट्स। सो सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट सेशन दैट ऑटोकैड की फाइल किस प्रकार से सेव करना है। यदि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, यू कैन टाइप गुड, बेटर, बेस्ट और लाइक और वेरी गुड और नाइस और थैंक यू। यू कैन गिव योर फीडबैक इन द चैट बॉक्स। सो प्लीज रिमेंबर दैट यहाँ पर छोटी छोटी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, बट दे आर इन द लॉन्ग रन दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे साथ में कोई एक्सीडेंट होने का चांस ही नहीं चाहिए हमको कि हमारी फाइल सेव नहीं हो गई, डेस्कटॉप पे चली गई, गम गई, वहां पे माय डॉक्यूमेंट में चली गई, दिख नहीं रही है, करप्ट हो गई, तो रिप्लेस भी नहीं करना है। दैट इज फिफ्थ टिप। ऑलरेडी आई शेयर यू कि कोई फाइल को रिप्लेस भी नहीं करना है। हर बार नई फाइल आप सेव करो चाहे तो, यदि गलती से सेव कर रहे हो तो। लेकिन यदि आप सी ड्राइव में सेव ना करते हुए आप डी ड्राइव पे आपके नाम का एक फोल्डर बना लेते हैं और उसके अंदर सारी फाइल सेव करते हैं, तो आपको हमेशा मालूम रहेगा कि मेरी फाइल सब एक जगह पे सेव है
अब ये डी ड्राइव पे क्यों सेव करनी है, इसका मैंने आंसर आपको बताया नहीं। सो प्लीज रिमेंबर दैट डियर फ्रेंड, व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि ये जो फाइल है ये डेस्कटॉप पे सेव नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव नहीं करनी है, या जहां पर भी डिफॉल्ट सी ड्राइव पे सेव नहीं करनी है। इसका कारण है, सपोज यू आर यूजिंग यूर लैपटॉप, या आपका आपका कंप्यूटर आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर पे, तो क्या होने वाला है, गलती से यदि लाइन चली गई और आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, या आपके कंप्यूटर में वायरस चले गया, या आपका कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करते समय कंप्यूटर के सी ड्राइव पे गड़बड़ हो गई, तो आपको अभी क्या करना पड़ता, फॉर्मेट मारना पड़ता है। आपका काफी लोगों को मालूम होगा कि हमको हमारा कंप्यूटर लैपटॉप स्लो हो जाने की वजह से, या वायरस आने की वजह से, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बराबर काम नहीं कर रही इसके वजह से सी ड्राइव को फॉर्मेट मारना पड़ता है। तो जब भी हम लोग हमारा कंप्यूटर रिपेयरी को देंगे और सामने वाला व्यक्ति आपके सी ड्राइव को फॉर्मेट मारेगा, तो आपके डेस्कटॉप की भी फाइल चली जाएंगी, आपके माय डॉक्यूमेंट की भी फाइल चली जाएंगी, और यदि सी ड्राइव पे आपने गलती से और कहीं भी सेव किया होगा तो सारी फाइल आपकी सेव होने वाली नहीं है। यूर डाटा विल गेट लॉस। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपका यदि लैपटॉप लेटेस्ट वाला है, तो लेटेस्ट लैपटॉप के अंदर क्या होता है, एक एसएसडी हार्ड डिस्क होती है जो सी ड्राइव होता है हमारा, और दूसरी होती है हमारी 1 टेराबाइट वाली हार्ड डिस्क जो हमारा डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव होता है। तो हम लोग यदि सी ड्राइव की जो एसएसडी हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर सी ड्राइव रहता है आपका, वही आपका विंडोज का ड्राइव रहता है, और वो विंडोज का ड्राइव यदि करप्ट हो गया तो हम लोग एसएसडी हार्ड डिस्क को कभी भी फॉर्मेट मार के नया विंडोज इंस्टॉल करके, नया ऑटोकैड इंस्टॉल करके हम लोग यूज कर सकते। लेकिन आपकी जो प्रोफेशनल काम की जो फाइल रहेगी वो फाइल सेफ रहेगी आपके डी ड्राइव पे, या ई ड्राइव पे सेव रहेगी, या एफ ड्राइव पे सेव रहेगी। एंड देयरफॉर दिस इज द इंपॉर्टेंट टास्क दैट एवरीबॉडी हैज टू रिमेंबर, कि आपको आपकी फाइल डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे या एफ ड्राइव पे फोल्डर बना के वहीं पर सेव करनी है। तो अभी आप चूंकि यहाँ पर मेरे साथ में सीख रहे हैं, तो आपको 2 फोल्डर बनाने हैं डी ड्राइव पे या ई ड्राइव पे। कौन से 2 फोल्डर बनाएंगे, सो पहला आप बनाएंगे ऑटोकैड बिल्डिंग ड्राइंग, यानी जिसमें आप आपका जो फाइनल सबमिशन रहने वाला है ये क्लास का, जहां पर आप बिल्डिंग ड्राइंग बनाने वाले 16, वो वाले सारे फाइल आप वो फोल्डर में सेव करेंगे। या आपके कोई भी क्लाइंट का ड्राइंग है तो आप वहां पर सबमिट करेंगे, सेव करेंगे। या आपके किसी भी कॉलेज का सबमिशन है तो वो भी आप वहीं पर सेव करेंगे। अब दूसरा फोल्डर आपको बनाना है और एक डी ड्राइव पे, तो कौन सा फोल्डर बनाना है डी ड्राइव पे, तो आपको वहां पे बोलाना है प्रैक्टिस ड्राइंग फाइल, ऐसा एक फोल्डर बनाना है। फिर से ऑटोकैड प्रैक्टिस ऐसे भी नाम से आप फोल्डर बना सकते। तो आप अभी यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जो छोटे छोटे ड्राइंग बनाने वाले हैं, जिसका सबमिशन आपको करना है मेरे पास में, वो ड्राइंग आपको आपके नाम से सेव करना है, पीवीके प्रैक्टिस पॉलीगॉन प्रैक्टिस, या पीवीके कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रैक्टिस, ऐसे आपको जो फाइल के नाम देने पड़ेंगे, तो वो सारे फाइल आप इस वाले फोल्डर में सेव करेंगे। सो आई होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो टाइप सी इन द चैट बॉक्स, एंड फॉर टिल टुमारो आई विल थैंक यू टू ज्वाइन फॉर दिस कोर्स। आपने ज्वाइन किया, so every day you will learning some of the new things. So I hope that you are enjoying these sessions. So ask your other friends that, so these classes are very much powerful and important, and you are listening to all these things and you are learning all this. So I hope you will do all these things, and then with this you will learn every day. So thank you once again for joining this course. I will stop share my AutoCAD drawing file, and I hope that you are enjoying this session. So we will now just stop for the today's. Tomorrow again at the same 8:30, you have to join 5 to 10 minutes before, and then you should ensure that there should be a good internet connectivity. आज कुछ स्टूडेंट थे जिनका बार बार कनेक्टिविटी छूट रही थी और बार बार मुझे उनको ज्वाइन करना पड़ रहा था। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर कि आपको ये सारा टाइमली बराबर करना है। So thank you once again for joining today's class. See you tomorrow. Thank you.